आप देख रहे हैं बियानी टीवी, बात में दम है। वेलकम टू इंग्लिश है आसान विद मी कृतिका। और आज मैं आपको एक बहुत सिंपल सी टेक्निक बताने वाली हूँ आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करने के लिए। और वो टेक्निक है ग्रुप डिस्कशन टेक्निक। जी हाँ, ग्रुप डिस्कशन के बारे में आप अक्सर सुन चुके होंगे। एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में जब आप किसी इंस्टीट्यूट में अप्लाई करते हैं जॉब के लिए और मे बी फॉर हायर एजुकेशन के लिए आप जाते हैं तो ग्रुप डिस्कशन बहुत काम आता है। बट यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं एक टेक्निक जिसको हमने बोला ग्रुप डिस्कशन टेक्निक, आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने के लिए। सो व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर दिस? What you have to exactly do is 4 to 5 of your friends will prepare a topic. आपको एक topic prepare करना है and then you will sit together. But I would suggest not more than 4 to 5 people, otherwise confusion create हो जाएगा. So जो 4 to 5 आपके friends हैं उनके साथ बैठिए comfortable से environment में, कोई भी एक topic जिस पर आप already read कर चुके हैं उस पर discussion शुरू करिए. Keep in mind कि one of your friends in the group who has a good hand over English, मतलब जो English comfortably बोल सकते हैं। और probably you can ask your teacher for guidance जिनको English अच्छे ढंग से आती है। इससे क्या होगा, एक तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करेंगी, सेकेंड यू विल गेट कॉन्फिडेंस टू स्पीक इन पब्लिक बिफोर गोइंग फॉर अ पब्लिक स्पीकिंग प्रेजेंटेशन। ये अगर आप टेक्निक प्रैक्टिस करते हैं कई बार तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंप्रूव कर जाएगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगी और आप एक फ्लो में बोलना सीख जाएंगे, हाउ टू पुट अक्रॉस योर पॉइंट्स व्हेन देयर आर अ कपल ऑफ पीपल प्रेजेंट। सो दिस टेक्निक, ग्रुप डिस्कशन टेक्निक, इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। और आज मैं लेकर आई हूं अपने ही कुछ स्टूडेंट्स जो आपके सामने डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि ये ग्रुप डिस्कशन हम कैसे आगे कैरी करें। सो आई वुड लाइक टू वेलकम द साइंस डिपार्टमेंट एंड 4 of my students from the science department who will present a topic, is science a boon or a bane, in front of you all. नमस्कार, मैं अंशु बराला आज आप सभी का बियानी टीवी पे स्वागत करती हूँ। आज हम यहाँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे ग्रुप डिस्कशन करने के लिए मौजूद हैं। वो टॉपिक है, इज साइंस अ बून और अ बेन। अगर हम मेडिकल साइंस की बात करें तो इतने कई सारे डिजीज़ हैं, फॉर एग्जांपल कैंसर, डायबिटीज़, ट्यूबरक्लोसिस जैसे कितने सारे रेयर डिजीज़ हैं जिनको आज हम सिर्फ और सिर्फ साइंस की बदौलत क्योर कर पा रहे हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हैज़ गिवन न्यू लाइफ टू पीपल। Plastic surgery, surrogacy have turned imagination to reality, isn't it? Yes, you're right, Anshu, but there's a negative side of medical science also. Excessive consumption of drugs may lead to death. Negative vibes are easy to gain nowadays. Teenagers' mind can be easily influenced. So negative people are trying to influence teenagers so that they can move towards drug addiction. And people nowadays consume medicines without consulting a doctor. And that may lead to several diseases. And you know what, if on daily basis we take these antibiotics, then it directly affects on our immune system, and a time comes जब भी हमारी बॉडी को इफेक्ट देना बिल्कुल बंद कर देती है। And secondly, a common person who can't afford the bills of the hospitals, they prefers to take medicines without any prescription and knowledge, so it directly affect on our liver. Yes, you are absolutely right, Simran, but I want to draw your attention towards one more point, that is a general science. Like for example, cell phones that we use daily. With the help of cell phones, we can connect with anyone at any point. And moreover, if we talk about one more feature of cell phone, then that is Google navigation. With the help of Google navigation, we can know the routes and maps of any city. And if we talk about one more point, that is the equipments. With the help of cleaning and kitchen equipments, the life of every homemaker has become so easy. But Diksha, don't you think that if on daily basis we use these machineries, then rather than depending on it, we are relying on it, and it also reduces our work capacity as well as thinking capacity? Yes, you are right, Simran, but हम इसके सारे ब्राइट साइड को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करें one more feature of our cell phone, that is camera. Camera has contributed a lot to media industry as. But I think that it has also misused at so many places like washrooms, changing rooms, hotels, और इसके बाद इसका मिसयूज़ कैसे होता है हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। Yes, you are right, but हम मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये स्टिंग ऑपरेशन एंड ऑल में हमारे नॉलेज के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए कितना यूजफुल है, हम उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं ना। जब हम कैमरा की बात कर रहे हैं तो हम इसे वाइड स्केल पर भी ले सकते हैं। टेक्नोलॉजी, वी कैन टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी। एज अंशु सेड, वी कैन नाउ एक्सप्लोर द होल यूनिवर्स विद द हेल्प ऑफ साइंस। वी हैव यूज्ड इट टू रीच मार्स फ्रॉम मून। वी हैव यूज्ड स्पेस क्राफ्ट्स
that is an invention of science, and it is working as an helping hand in our army also. It is providing us missiles, guns, tankers, spacecrafts and submarines and robots as well, that may save human life and work power as well. But I think that robots are good for us because they have no feelings, so they can't differentiate between the saviors and rivals, so they can be used against us also. But we are saving the manpower, work power, and bomb detectors are an invention of science and technology. But I think that bombs has also created a lot of destruction. If we see our past, then during World War II what happened with Japan, we all are well aware of it. आज भी वहाँ हिरोशिमा और नागासाकी में जो रेडिएशन है वो वहाँ के पीपल को मेंटली और फिजिकली दोनों इफेक्ट कर रही हैं. और हिरोशिमा नागासाकी की बात की जाए तो इट्स अबाउट हिस्ट्री. 1945 में हुआ था वो. अगर हम अभी रिसेंट की बात करें तो जो नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर किम जोंग, उन्होंने हाइड्रोजन बॉम्ब को पास किया है जापान के ऊपर, और वो कितना बड़ा थ्रेट है. कल को अगर वो जापान के ऊपर गिर जाता है तो हिरोशिमा नागासाकी का जो इश्यू है वो वापस भी तो रिपीट हो सकता है. वापस वो रेडिएशंस कितना इफेक्ट कर सकते हैं. तो हम ये नहीं कह सकते कि ये सब वापस नहीं होगा. If it repeats, it will be a curse to mankind, it will be a curse to humanity as well. But we can never curse science. It has always shown us the brighter side of it. We can ignore the negative side of science as well. राइट. अगर हम एक और चीज़ देखें, ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो ट्रांसपोर्टेशन में चाहे वो लैंड के थ्रू हो, एयर के थ्रू हो, चाहे वो वाटर के थ्रू हो, लैंड ट्रांसपोर्टेशन, हर तरह की ट्रांसपोर्टेशन ने बहुत ज़्यादा बेनिफिट किया है. साइंस हमें जितना भी ट्रांसपोर्ट के लिए अप्रूव कर रही है, जितने भी हेल्प आउट कर रही है, आई थिंक दैट्स गुड. और जितने भी कैब्स हम आज घर बैठे आराम से कैब बुक करके कहीं भी जा सकते हैं, हमारा टाइम कंज्यूम नहीं होता. पुराने एजेस की बात की जाए तो हम 2 to 3 days लगते थे हमको एक सिंगल मैसेज पहुंचाने में. आज हम सिर्फ मिनट्स में मोबाइल के थ्रू कर देते हैं वो सब काम. आई थिंक साइंस ने हमें काफ़ी कुछ दिया है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. इसका नेगेटिव साइड ये भी है कि हमारा कितना फ्यूल कंज्यूम हो रहा है, कितना पोल्यूशन फैल रहा है. फ्यूल कंज्यूम इतना ज़्यादा हो रहा है कि ये भी कहा जा रहा है कि अपकमिंग जनरेशन के लिए ये फ्यूल बचेगा ही नहीं. और पोल्यूशन की बात की जाए तो इट हैज़ अफेक्टेड अस ऑन आवर हेल्थ एज वेल एज द इन्वायरमेंट. इतने सारी डिजीजेस फैल रही है पोल्यूशन की वजह से, जैसे अस्थमा. Yes, you're right, absolutely right, Gauri. And if you talk about asthma, I would like to elaborate. Asthma is not only affect the particular person, it also affects the coming generations. And अगर हम आगे और बात करें व्हीकल्स के टर्म में, ट्रांसपोर्ट के टर्म में, सो हम ये देख सकते हैं जो इंडिया के आज मेट्रो सिटीज़ हैं वो लाइक दिल्ली एंड बॉम्बे, वो आज अपने ट्रैफिक जैम की वजह से ज़्यादा जाने जाते हैं इन कंपैरिजन टू देयर डेवलपमेंट. तो हम साइंस स्टूडेंट इन सारे टॉपिक्स को रिलेट करके इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि साइंस को चाहे हम मेडिकली रिलेट करें, चाहे जर्नली, चाहे हम टेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे ट्रांसपोर्टेशन की, साइंस हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स. लेकिन हमें हमेशा उसके बेनिफिशियल पार्ट को ही यूज़ करना चाहिए. साइंस हमारी लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसके बिना सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है. तो अगर हमें साइंस को यूटिलाइज़ करना है तो यूटिलाइज इट एज अ बोन, नॉट अ बेन. साइंस को कभी भी किसी भी टर्म्स में अब्यूजिवली यूज़ नहीं किया जाना चाहिए. साइंस ने हमें इतना कंट्रीब्यूट किया है तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उसको एज अ बोन ट्रीट करें और अपने मैनकाइंड को, अपने इकोसिस्टम को, अपनी पूरी सोसाइटी को उसके बेनिफिशियल पार्ट्स को समझाएं और उन्हें यूटिलाइज कराएं ताकि हम और हमारा इंडिया आगे बढ़ सके. धन्यवाद. अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, हम आपके लिए और वीडियोज़ ऐसे ही लाते रहेंगे, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.